I, okay. So in today's session, we progress from the last topic that was oceanic currents, and today we close up this particular aspect forever. Mainly, what we have studied till now is the force behind generation of oceanic currents and how they are distributed, and whether there is a logical connection, direct logical connection, one to one, between where these oceanic currents emerge, in which direction they flow, and where the winds, the planetary winds exist. So the correlation between planetary winds and oceanic currents also we have understood. And most of the things get explained with the help of planetary winds themselves. Okay, most of the currents, etc., they get explained. So planetary winds, presence of continents, and Coriolis force. Three things: planetary winds, presence of continents, and Coriolis force. These three things you can use to explain any of the currents, any of the major currents. And we also studied that this particular circulation of currents moving from the equator polewards and then returning after a circle, making a circle, returning back towards the equator at a different depth. Yes, that is a different aspect, that they return at a different depth after sinking down. They return, becoming cold currents. So this particular circulation is called a gyre. That we also understand now. We also know that there are 5 major gyres. There could have been 6, but we know that Asia is such a big land mass. It does not have any open oceanic surface or connected oceanic surface. That is why. So there are 5 gyres. We all know they are all here in your. Let me see. Adjust the focus of this thing. Okay, I think you would be able to see this clearly. Yes. So we are talking about, okay, it is focusing on me actually. That is why the background is getting blurred. Let me turn it to manual focus. Yes. Fine. So I was just telling you that we now know that there are 5 important gyres on the entire oceanic surface. And then we also understand that these currents will follow the rules which we have applied in terms of the planetary winds, that is Coriolis force, isn't it? We now know that even the water bodies, while moving, they also follow Coriolis effect. And we also know that, as is in the case of winds, the force will be maximum as we move away from the equator. There will be minimum at the equator, and that is also the reason of doldrums being created in this belt. You know this, that there is, just along the equator, there is a belt where there is a zone called doldrums, where a strong wind presence is not there. Okay, because I'll not say that directly because of Coriolis force. What I'm saying, that because of the nature of the cycles, cells that are created here, that hot winds, hot air that gets up, we call, because of the heating of the land mass, the radiational heating of the atmosphere in connection with the land mass, air rises up, it splits into 2 when it cools down, subsides, and that is how a cycle is created here and there. We know that, we already know that. But this particular zone where the wind gets converges and then gets up, that particular belt does not have the presence of very strong winds. And that is the area where, because of absence of winds, so many stories are associated with doldrums and all, we know that. But for our concern with regards to this topic, all that we need to know, because of this, whatever water body is
getting transported to this side because of these two currents, which we already understand. No need to explain further. These currents which follow the wind patterns, they are being carried away by the trade winds. तो ये तो सारे के सारे हैं ही सब जगह पे वही. They pile up the water on this corner of the interlining Pacific or Atlantic Ocean, and because of increased piling up, what happens that it requires a strong winds or a strong force to sustain that pile there. If there is no if there is an absence of enough push force, what will happen that the piled up water, which is already higher on this side and lower in this side, because all the water has been in a way carved out and then accumulated here. This accumulated or piled up water will naturally, if it does not find sufficient force to keep it there, it will start going back to its position. Okay? And this starts flowing this side. And that is what makes the counter current. Remember this always. So this is the current that cannot be explained on the basis of other things which we have studied. That's why a special explanation is needed, and that is the special explanation. Because of absence of the strong winds, the oceanic water that piles up here, that moves down back to its original place, back to the gradient, along the gradient, and that is what forms the equatorial counter current. You remember this? ये भी समझ गए आप? ज्यादातर चीजें जो आपको दिख रही हैं इसमें सब ऑब्वियस हैं. बहुत ज्यादा जब आप लॉजिक समझते हैं तो सब समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है हमको. ये सब पोलर जायर जो छोटे छोटे, ये तो मेजर थे 1 2 3 4 5, ये जो दो ठो यहां दिख रहे हैं सब पोलर जायर, नॉर्वेजियन उसमें और अलास्कन इस करंट जो है उसके चारों सब पोलर जायर जो बन रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए जरा. इसका डायरेक्शन उल्टा है कि नहीं है? डायरेक्शन समझ रहे हैं जो कह रहा हूं? ये जायर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं? जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सब कुछ ऐसे होना चाहिए ना. बताइए भाई. तो आई कैन आस्क यू टू हैजर्ड अ गेस कि ऐसा क्यों होता होगा. यहां पर दो जगहों पर सब पोलर यानी कॉमन, एक चीज कॉमन हो रही है कि पोल के आसपास जो जायर बन रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जा रहे हैं. ऐसा क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं है. सब पोलर यहो यार की तरफ घूम रहा है, यहो यार की तरफ घूम रहा है, ऐसा दाहिने दाहिने उड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर बाएं घूमना चाहिए, सब उल्टा हुआ जा रहा है. तो ये क्या कारण हो सकता है? बोला अंदाजा लगाइए. जो लोग पिछली क्लासेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा आसान होना चाहिए बताना. मैं हिंट दे देता हूं, अभी नहीं दिमाग में अगर आ रहा है आपके तो पहले वेट कर लेता हूं थोड़ा. कुछ रिस्पॉन्स अगर आप दे सकते हैं तो बताइए. अच्छा, वो वाली चिरकुटाई करने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरा डिवाइस है जिसमें गूगल ऑन है, गूगल में से फटाक से देख के चैट बॉक्स में लिख दे रहे हैं और हीरो बन जा रहे हैं. कोई फायदा नहीं. दैट इज चीटिंग योरसेल्फ टू द हाईएस्ट एक्सटेंट. हाई प्रेशर एक जवाब आया है सेजल का. सेजल इज ऑफ द ओपिनियन that this particular thing is happening because of high pressure. Okay, so how high pressure will reverse the very principle that we have studied in terms of northern hemisphere and southern hemisphere? कहीं और ऐसा सुना है आपने? कभी किसी ने और ऐसा सुना है? इतने समय से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं. जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए साथी हैं दोस्त, वो बताएं जरा, कभी आपने ऐसा सुना है कभी कि जहां पर हाई प्रेशर हो वहां पर पूरा का पूरा चक्र जो है बदल जाता है, जो भी नियम पढ़े थे उसका उल्टा हो जाता है? नहीं नहीं, जवाब दो. यानी भूल गया? नहीं नहीं, आप रिटेन कर पाए. साइक्लोन एंटी साइक्लोन याद है? साइक्लोन्स, साइक्लोन्स का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे? रोटेशनल डायरेक्शन साइक्लोन्स का क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में?
चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, छोड़ दीजिए इसको। यस, सेजल का आंसर इज राइट, सेजल्स आंसर इज टू द पॉइंट। दिस पर्टिकुलर जोन इज मार्क्ड बाय डोमिनेंट हैवी प्रेशर। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हैवी प्रेशर का एरिया क्यों है। टेम्परेचर की वजह से तो है ही है, ठीक है, टेम्परेचर भी है, और एयर कॉलम जो है वो हैवी प्रेशर एरिया बनाता है यहाँ पे। और हाई प्रेशर एरिया बनने की वजह से आपको याद होगा कि यहाँ पर हवाएं जो है वो ऊपर नहीं उठेंगी, है वहां, यहाँ पर तो दबाव होगा और भागेंगी, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जैसी जो है वो पैदा होते हैं। तो साइक्लोनिक कंडीशन का जो डायरेक्शन होगा एंटी साइक्लोनिक हवा के टर्म्स में, ये तो स्ट्रीम है, लेकिन प्रिंसिपल वही अप्लाई होता है, करंट है ये तो, लेकिन प्रिंसिपल वही अप्लाई होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से ये छोटे छोटे जो सब पोलर जो जायर्स हैं वो उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा जब आप साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोन हम लोग इसके बाद जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो लोग पढ़े हुए हैं और फिर भी भूल जा रहे हैं, दैट इज नॉट डन। ये भी आप समझ गए, ठीक है भाई। अब इसी पर मैं बिल्डअप करना चाहता हूं और आपसे कुछ चीजें पूछूंगा और डिस्कस करेंगे हम कि इन करंट्स का, जितने भी जो करंट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं, इनका मानव जीवन पर, क्लाइमेट के टर्म्स में, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के टर्म्स में, ओके, मानव जाति के विकास के संबंध में, मानव जाति का विकास नहीं कहना चाहिए, मतलब जो मानव सभ्यता का जो विकास अभी हुआ है हाल फिलहाल में 100, 200, 400 साल में जितना आप देख रहे हैं, उस सब में क्या योगदान है ये जानना जरूरी है। उससे पहले या तो लेट मी सी माय लेक्चर प्लान। अच्छा, कुछ चीजें और समझ लीजिए तब हम जाते हैं उस तरफ, इंपैक्ट साइड में, उसके बाद जाते हैं। एक बात ये भी आप जान लें कि अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का जनरल आइडिया तो आपको हो ही गया है। देखिए, अपवेलिंग में होता यह है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपवेलिंग का एक स्वरूप, ध्यान से अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो आगे। पहली बात, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग को अभी हमने जिन टर्म्स में पढ़ा है इस लेक्चर सीरीज में, पिछले दो लेक्चर से, उसमें सिर्फ एक संदर्भ में पढ़ाई की हमने। एंड व्हाट वाज दैट रेफरेंस, दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट वाज कि जब हाई डेंसिटी का वाटर लेयर लो डेंसिटी के वाटर लेयर के ऊपर होगा तो वो सिंक होगा, वो नीचे चला जाएगा, और नीचे से जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये हमने पढ़ा है, अपवेलिंग हो जाएगी फिर इस तरह से। हम ये जानते हैं कि दोनों हमने क्रॉस सेक्शन, अटलांटिक ओशन का एक क्रॉस सेक्शन लेके देखा था कि एक तरफ ग्रीनलैंड है, एक तरफ अंटार्कटिका है, तो जहां ठंडा ठंडा है वहां का पानी नीचे ऐसे बैठ जाएगा और बाकी जो है वो ऊपर उसके रहेगा। यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो एक तो वो हो गया, वो मैसिव वाटर बॉडीज का डीप ओशियानिक अपवेलिंग की बात हो रही है। एक जो अपवेलिंग ऊपरी सरफेस में जो होती है वो सब जुड़ा हुआ है आपस में, परेशान हो गए। तो यानी कहने का अर्थ है कि कहीं अगर डाउनवेलिंग हो रही है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कहीं ना कहीं अपवेलिंग भी होगी। यस, फाइन। दूसरा जब हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब कभी आप सोच कर देखें इस चीज को कि किसी भी वाटर बॉडी को अगर हवा वहां से खाली करती जाए या ठीक है, इक्वेटोरियल करंट बने और वो खाली कर दिया जाए, जब देखो ऐसे बढ़ेगा वाटर बॉडी का जो मूवमेंट है, अभी हमने क्या पढ़ा था उसी को मैं दोबारा से बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इसी को ये जो दो लाइंस इधर जा रही है ना, यही है वो, ये दो लाइंस ऐसे समझ लीजिए, ये दो लाइंस वही है, ऐसे जा रही है। तो आप नहीं जानते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा बहुत, माना कि वीक है लेकिन थोड़ा बहुत कोरियोलिस फोर्स इसको इधर उधर ऐसे, तो नेट डायरेक्शन ऐसा नहीं हो जाएगा। जो उसका नेट डायरेक्शन मेट्रोलॉजिकल जो इक्वेटर है, ITCZ ऊपर एक्चुअली रहता है ना, थोड़ा आप जानते ही हैं। तो जो मेट्रोलॉजिकल है उस जोन में अगर चलने लगेगा मैटर, तो जो वो घटना नहीं होती है जब नीचे वाली सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स ऐसे क्रॉस करती है तो इधर को नहीं मुड़ जाती है। याद आया आपको, इक्वेटर को जब क्रॉस करती है, साउथ वेस्ट मानसून जब हम पढ़ते हैं तब उसका जिक्र आता है। कोई बात नहीं, अभी जो लोग नए हो नहीं इसको आप सिंपल सा समझिए कि एक बल है जो इसको इधर से इधर ले जा रहा है। कौन सा बल है? वो ट्रेड विंड्स इसको खींच रही है इधर की तरफ। दूसरा ये है कि जब इस तरफ पहुंचते हैं यहाँ पर तो उनको कोरियोलिस फोर्स इधर की तरफ घुमाने शुरू करता है, तो जो एक नेट फोर्स बनेगा वो इन दोनों के बीच का होगा। कोरियोलिस फोर्स इधर ले जाना चाहता है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, तो एक नेट फोर्स जो बनेगा जब कभी भी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स पास ओवर द ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड देन टू द मेट्रोलॉजिकल इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुके हैं ना अब हम, तो इक्वेटर पर तो जीरो था,
लेकिन हवाएं जब खींच के पानी को इस तरफ लाएंगे, यहां पर लाएंगे, तो यहां तो अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए, ठीक। और कन्वर्जेंस जोन यहां है। हमारी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये मूवमेंट? ऐसे इक्वेटर पर इस प्रकार से हवा उठ रही है, फिर वापस आके कन्वर्ज होकर ऐसे मिल रही है, तो ये कन्वर्जेंस जोन कहां होगा? 0 डिग्री पे होगा, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमने आपको सिर्फ एक ही वाला मॉडल करके दिखाया था, सिंपल सा एक मॉडल ये बना के दिखाया था, जो आपने इसमें भी देखा। ये देखिए, ये वाला मॉडल, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, ग्रुप की जरूरत नहीं। हमने इस मॉडल के तहत अपनी समझबूझ पैदा की थी कि ये इक्वेटर है, ये भाग सबसे ज्यादा गर्म होगा, ग्रीन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा गर्म होगा। जब ये ग्रीन वाला बेल्ट जो है सबसे ज्यादा गर्म होगी, तो इसके ऊपर की हवा जो है वो उड़ जाएगी। जब इसके ऊपर की हवा उड़ जाएगी ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं वापस कन्वर्ज भी होगी वो, फिर वापस इसकी तरफ आएगी। जब इसकी तरफ आएगी तब इस तरफ मुड़ जाएगी। भाई यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन सच थोड़ा सा इससे हटकर है। वो सच क्या है कि अक्षांशों के हिसाब से इक्वेटर 0 डिग्री ये है, हाँ ये है, ये बात सही है। लेकिन जो भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है वो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर उठकर है। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो यहां बनेगा। तो अब हम दो अलग अलग वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। एक वर्गीकरण दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का, जो कि हरे लाइन से रिप्रेजेंटेड है, और एक वर्गीकरण टेम्परेचर बेस्ड, कि ये वो लाइन है जहां से टेम्परेचर आधा आधा बढ़ता है। तो धरती आधी आधी बढ़ती है 0 डिग्री से, लेकिन धरती के ऊपर का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है यहां से। ऐसा क्यों? ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है और ये थर्मल इक्वेटर है। ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्यों है? आप लोग बहुत बार आंसर देख चुके हैं इसका, जानते हैं। अरे जब सारा का सारा जमीन जो है वो तो इसी तरफ इकट्ठा हो गया है ना। तो आप पूरे ग्लोब का टेम्परेचर नापेंगे, तो जब जमीनिया इधर ज्यादा है, सॉलिड सॉलिड सब इधर ज्यादा है, तो इधर ज्यादा गर्म रहेगा ना। तो एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज इधर की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएगा कि इधर ज्यादा गर्मी है? तो अगर इधर ज्यादा गर्मी है तो ये बेल्ट बनेगी ना फाइनली, गर्मी वाली। तो अब समझिए वो जो हम आपको बता रहे थे कि पानी यहां से खिसकना शुरू हुआ। अच्छा भाई, खिसक रहा है खिसक रहा है खिसक रहा है, लेकिन हवाएं कहां कन्वर्ट हो रही है? यहां। तो पानी को भी ऐसे इधर ले आएंगे कि नहीं? पानी को अपने साथ हवाएं ले आएंगे कि नहीं, सफेद वाले तीर के साथ? तो जब पानी जैसे ही 0 डिग्री वाले को क्रॉस करेगा, तो कोरियोलिस फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स, ध्यान रखना, इनका मीटिंग पॉइंट डिसाइड होता है लाल वाले से, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की जो दिशा है वो डिसाइड होती है हरे वाले से। आप ये जैसे ही लांघेंगे, ये लक्ष्मण रेखा लांघते ही आपको इधर मोड़ दिया जाएगा। इससे मतलब नहीं है, इस हरे वाले को लाल वाले से कोई मतलब नहीं। तो लाल वाली जो लाइन है इसका कोरियोलिस फोर्स से कोई संबंध नहीं है। हरी वाली जो लाइन है उसका कन्वर्जन जोन से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि लाल लाइन ऊपर है, इसलिए कन्वर्ज होते समय पानी या हवा दोनों को ही ये क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे कर देगा। क्लियर? मेरे को तो है ही नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब आ जाओ इस चित्र पर, आप समझ जाओगे। तो अगर ऐसा है कि जब ज्योग्राफिकल इक्वेटर से जो कन्वर्जन जोन है, जो पुल फैक्टर है, जो खींच रहा है, सक्शन सक्शन तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सक्शन ये कर रहा है। तो अगर सक्शन ये कर रहा है तो ये रेखा तो लांघनी पड़ेगी। जैसे रेखा लांघेंगे बस उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ गए? तो अगर ऐसा होता है, इन एनी केस, पानी जहां जहां से सरफेस से मूव होता जाएगा, ऐसे मूव होता जाएगा इन फोर्सेस की वजह से, तो वहां खाली जगह पैदा होगी ना। उस खाली जगह को भरने के लिए पानी नीचे से आएगा, ऊपर की नहीं आएगा। तो इक्वेटोरियल जो जोन होगा वो अपवेलिंग का जोन बनेगा। जो भी इक्वेटोरियल जोन होगा वो अपवेलिंग का जोन बनेगा। ठीक है? एक और तरीका इसका ठीक उल्टा देखिए। कहीं किसी जगह पे चारों तरफ से हवाएं आ रही हो, करंट्स आ रही हो, सरफेस करंट्स आ रही हो, और वो इकट्ठा होती जाए इकट्ठा होती जाए। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इधर का पानी इधर इकट्ठा हो जाता है बहुत, अगर उधर का पानी इधर इकट्ठा हो जाए बहुत, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, तो फिर वो क्या होगा?
वो या तो डाउन वेलिंग हो जाएगी, इतना भारी वो कॉलम है कि वो नीचे सिंक हो जाएगा, नहीं तो उस सिंक होके और उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जैसा अभी हमने काउंटर करंट में देखा था, याद होगा आपको, इक्वेटोरियल काउंटर करंट में हमने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये बीचों बीच समंदर में भी हो सकता है। ये दोनों चित्र मुझे आपको बताने का पर्पस क्या है, सिर्फ ये बताना कि हवाओं के प्रभाव से भी पानी खिसकता है सरफेस। ठीक, और अगर ऐसा है तो उसको भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर आएगा। तो हवाएं अकेले भी, बिना जमीन के सहारे, बिना किसी और एक्टिविटी के सहारे, हवाएं खुद, उनमें ये ताकत होती है कि सरफेस वाटर को डिस्प्लेस कर दे और उनको भरने के लिए नीचे से अपवेलिंग हो जाए। और ठीक इसका उल्टा भी, कि सरफेस वाटर को इतना भारी बना दे कि वो नीचे चला जाए और डाउन वेलिंग हो जाए। तो ये दोनों प्रोसेसेस हवाएं अकेले भी कर देती हैं। ये था पर्पस आपको बताने का। नेक्स्ट, अब हवा और जमीन ये सब साथ मिलकर कैसे इसको करते हैं। ऐसे हवा ऐसे चल रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट है, मान लीजिए अमेरिका है या कुछ भी है, उसका पश्चिमी जो है वो कोस्ट है, तट है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलेगी तो उसका नेट इफेक्ट किधर पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा कि ऐसे पड़ेगा, कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से। समझ गए ना बात। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि पानी यहां से साफ कर दिया जाएगा, पानी यहां से खिंच जाएगा पूरा। तो जब पानी सरफेस वाटर यहां से हटा दिया जाएगा तो उसको भरने के लिए नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है सबको, है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर हवाएं अपना डायरेक्शन बदल दे किसी कारण से, हवाएं यदि अपना डायरेक्शन बदल दे और इधर इधर से अगर हवा चल रही है, तब फिर क्या होगा, अभी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही बात हो रही है भाई, तो भी जो लगेगा डायरेक्शन वो तो राइट है, राइट लगेगा। यहाँ पर इधर से आ रहा है तो इधर, और इधर से जा रहा है तो इधर, दोनों ही कोरियोलिस फोर्स का जो है मैनिफेस्टेशन है। तो अगर ऐसा है तो पानी इधर पाइल अप हो जाएगा कि नहीं, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ भारी हो जाएगा कि नहीं पानी, और फिर वो नीचे बैठ जाएगा तो डाउन वेलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार कोस्ट पर चलने वाली हवाएं भी अप वेलिंग और डाउन वेलिंग करा सकती है। जहां कोई कोस्ट वोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वहां भी हवाएं अप वेलिंग और डाउन वेलिंग करा सकती है, कोस्ट के पास भी करा सकती है। और भी क्या रीजंस हो सकते हैं अप वेलिंग और डाउन वेलिंग के भाई, देखो कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो हवा का डायरेक्शन आप वैसे देख रहे थे, अब एक ये देखिए, ये इमेजिन करके देखिए कि हवा जमीन से पानी की तरफ चल रही है, ठीक है, ऑफशोर विंड कहते हैं, ऑनशोर और ऑफशोर, शोर से दूर जा रही है, ऑफशोर विंड है, इधर ये चले तो सरफेस के वाटर को लेकर चली जाएगी और उसको भरने के लिए पानी नीचे से रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, कोई सी फ्लोर ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई टेबल माउंट हो या कोई वॉल्केनिक स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, मतलब जो कि बीच में खूंटा बन के जो है वो पड़ा हुआ है रास्ते में, तो जब करंट इस तरह से जाएगा तो ऊपर उठने को मजबूर हो जाएगा कि नहीं, तो भी अपवेलिंग हो जाएगी। फाइन, तीसरी स्थिति देखिए, डायरेक्शन देखिए, ये लैंड है, लैंड का एरिया, उसमें एक ऐसे शार्प बेंड बना हुआ है, मान लीजिए कोस्ट लाइन पे, पानी यहां से चला जा रहा है, चला जा रहा है, सब इधर सरफेस करंट इधर को जा रही है, इधर को जा रही है। तो अब देखिए, ये जो करंट यहाँ का जो पानी सरफेस का है, ये अगर आगे जाएगा तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसका रिप्लेसमेंट जो है वो पीछे से आ रहा है पानी। समझ गए मेरी बात, ये वाला पानी इस वाले पानी को रिप्लेस करता जाएगा और करंट अपनी चलती जाएगी। इस एरिया में इसको रिप्लेस करने के लिए पीछे पानी नहीं है, जबकि ये अपने साथ इसके पनिया को खींचे लिए जा रहा है, ये सब मिलके पानी को अपने साथ खींचे ले जा रहा है सरफेस वाटर को, लेकिन यहाँ इसको रिप्लेस करने के लिए पीछे नहीं है पानी, तो नीचे वाला पानी ऊपर आएगा। समझ गए बात, इसके नीचे जो भी पानी है वो ऊपर आके ऐसे चल उसको भरता रहेगा, तो वहां अपवेलिंग हो जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स हैं वो अपवेलिंग और डाउन वेलिंग करवा सकते हैं ओशियनिक वाटर में, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। समझ गए यहां तक, क्या माना जाए कि इसमें तो कुछ था नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ कठिन था, आप अपनी राय दीजिए तो आगे बढ़ा जाए फिर, है ना, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप यहां तक समझ गए इस चीज को तो। एक
जो हमेशा टिपिकल उदाहरण हमेशा बताया जाता है वो आपको जानना जरूरी है। एक दो एग्जांपल हमने लेते हैं स्ट्रीम्स का, उससे हमें बहुत अच्छे से जो है समझ बूझ पैदा हो जाएगी। और अप वेलिंग डाउन वेलिंग जो ये करेंट्स हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखते कोशिश करते हैं। अगर आपको ठीक ठीक से दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है, तो फिर समझिए। देखिए हम कहां पर हैं। पहले गल्फ स्ट्रीम का पूरा एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर क्लोजअप करते हैं। गल्फ स्ट्रीम को पहले ठीक से देख लीजिए। और यहीं पे आपको एक महत्वपूर्ण चीज याद दिलाऊंगा, अगर आपको ध्यान है तो। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें, गल्फ स्ट्रीम जो है, ये जो लाइन चली जा रही है, ये क्या लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, नाम इसका लिखा हुआ है। और इसकी ओरिजिन का कारण क्या है? पानी की ये जो धारा चली जा रही है, ये इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? आप क्या समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारण है? यहां से यहां तक जितना बड़ा तीर मैंने खींचा है, बस उतना ही। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसको इधर ही रख लेता हूं। ट्रेड विंड्स, ठीक, सही बात है। यहां तक तो आप समझ गए। अब इस जगह पर क्या घटना होगी? पानी कॉन्टिनेंट से टकराएगा कि नहीं टकराएगा यहां पे? ठीक बात है। सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। जैसे ही वाटर की जो स्ट्रीम है, ये जो स्ट्रीम है, अगर कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो कॉन्टिनेंट, अब और रास्ता कहाँ है? आगे रास्ता तो बचा नहीं है, तो इसको इधर ही की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? ठीक बात है। और तो कहीं रास्ता है ही नहीं, तो पानी को जो है वो नॉर्थ वर्ड्स डिफ्लेक्ट करेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि हम लोग अभी कहाँ, किस तरफ चले जा रहे हैं? साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर क्यों चली आ रही है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये 0 डिग्री है, ठीक बात है, ये 0 डिग्री है, लेकिन जो कन्वर्जेंस जोन है वो तो यहां कहीं है ना। समझ गए ना? बार बार वही चीज आपको रीइंफोर्स कर रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। तो ये सारा, हाँ, सारा जो मैटर है, सारा पानी जो है, दोनों तरफ का जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, यहाँ चला है, आके सब लड़ेगा इसी पे। उसके बाद और कहीं रास्ता है नहीं, तो इसकी तरफ ये घूमना मजबूरी हो जाएगी इसकी, इस तरफ घूमेगा वो। ठीक बात है। अगर ऐसा है, अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, और आप तुरंत, आपको कैच कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है, तो क्या अब हम इक्वेटर से और दूर होते नहीं जा रहे हैं? इक्वेटर से और दूरी बढ़ती नहीं जा रही है, लड़ते लड़ते लड़ते। और अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितना ही इक्वेटर से दूर होते जाएंगे हम पोल की तरफ, तो कोरियोलिस फोर्स फिर से रगड़ना शुरू नहीं कर देगा? डिफ्लेक्शन का पहला कारण तो वो है ही कि कॉन्टिनेंट आ गया रास्ते में, वो कारण तो है ही। लेकिन एक ये भी तो है कि कॉन्टिनेंट ने थोड़ा धक्का दिया, फिर थोड़ा सा जैसे ही नॉर्थ वर्ड्स बढ़े तो कोरियोलिस फोर्स और हावी हो गया, तो अल्टीमेटली इसको घसीट के इधर की तरफ ले जाना चाहेगा कि नहीं? ठीक बात है। अब देखो, कमाल, अगला अगला कमाल है। मेरा सवाल यह है कि इस येलो लाइन में जो मैंने खींचा है, इस येलो लाइन में अगर आपको दिख रही है तो दिख रही है, आई थिंक यस। ब्लैक कर देता हूं तो आपको कहीं कोई संशय नहीं रह जाए। इस ब्लैक लाइन में मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। एफ, ABCDEF, एंड माई क्वेश्चन इज, ये धारा सबसे ज्यादा गर्म किस बिंदु पर होगी? क्या जवाब दिए? अभी नहीं आया जवाब।
बताओ भाई, तब तक हमें 2 मैसेज का जवाब दे दें भाई, अर्जेंट आ गया। क्या बोले? सी एंड डी बोल रहा है। ई। आपके लॉजिक का बेसिस क्या है? आपके दिमाग में ये आया होगा, या तो देखो दो तरह का आप लॉजिक लगाएंगे। या तो आप ये कहेंगे कि भाई इक्वेटर के जितना पास में होए वही पॉइंट सब गर्म होंगे, तो और जमीन के भी पास है, तो जमीन के पास हमें नहीं, ये कोई रस्सी थोड़े पड़ी हुई है, ये रस्सी नहीं पड़ी हुई है। जब आप बी पॉइंट पे हैं तो ए पॉइंट खत्म हो चुका है, ये पानी मूव कर रहा है ना। तो आप ये ना सोचे कि ए पॉइंट अभी गर्म होगा, जो है बी से ज्यादा, ऐसे नहीं। पानी ऐसे आ रहा है, मैं कह रहा हूं पानी अपने रास्ते के किस बिंदु पर सबसे ज्यादा गर्म होगा और क्यों। तो आप लॉजिक लगा रहे होंगे कि भाई इक्वेटर के जब तक पास में है और जमीन लैंड मास के पास में है तो सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये आप सोच रहे होंगे। दूसरा आप सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो पढ़ा था कि जो इंसोलेशन है वो जो इक्वेटर है उससे थोड़ा इधर ज्यादा होता है, इधर और इधर सब ट्रॉपिक्स में। दूसरा रीजन ये हो सकता है, इसलिए सी एंड डी बोल रहे होंगे। लेकिन जो मेन इंफॉर्मेट, जब जो चीज आपको आईटीसीजेड वगैरह सोच रहे हैं, हो सकता है यही सब दिमाग में आ रहा होगा कि जब आईटीसीजेड खुद ही शिफ्टेड है इधर, तो ऑब्वियसली सबसे गर्म इलाका वो होगा। लेकिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो भूल गए, आप लोकल फैक्टर को भूल गए। आप इस चीज को भूल गए कि मैंने बताया था कि धरती पर दो महत्वपूर्ण वार्म पूल्स हैं। ठीक है, हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर में दो वार्म पूल्स होते हैं, एक पैसिफिक में और एक अटलांटिक में। उन दोनों वार्म पूल्स को भूलिएगा मत कभी, क्योंकि लैंड लॉक्ड होने की वजह से वो एरिया बहुत गर्म हो जाता है। 3 तरह से समझिए, जमीन से घिरा हुआ जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाता है। कुछ अपने ही लैटिट्यूड, अपना ही जो लैटिट्यूड है उसमें भी अलग अलग जगह से तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा इलाका गर्म जो है कैरेबियन। मैंने पूछ कर भी बताया था आपको कि भाई ये कौन सा है आइलैंड, तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि ये कैरेबियन वाला इलाका है। सब भूल गए आप। दो वार्म पूल होते हैं, एक पैसिफिक वाला वार्म पूल होता है जो ऑस्ट्रेलिया के उधर आसपास आजू बाजू बनता है गर्मी से एकदम। हमको लग रहा है इसी पीडीएफ में था क्या? अगर ऐसा है तो सोचो क्या स्थिति है तुम लोगों की। काहे नहीं ध्यान देते हो भाई? ये देखो तुम्हारे सामने ये सब बता चुके हैं, कुछ बचा हुआ नहीं है कि भाई जहां जमीन ज्यादा आ जाएगी जो एरिया, वहां पर जो है वार्म पूल बन जाएगा। देखो एवरेज टेम्परेचर देखो कि क्या स्थिति है। ठीक है, ये सब बताया हुआ है कि टेम्परेचर है कि सैलिनिटी है, क्या दोनों सेम एक तरह से फॉलो करते हैं सी सरफेस टेम्परेचर। यही सब नहीं याद रख पाओगे तब कहाँ से सवाल भाई तुम लोगों का सही होगा। जो 2 स्लाइड पहले की चीज नहीं आप याद रख पा रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड। तो ऑब्वियसली अब तो समझ ही गए कि ये जो पॉइंट है वो सबसे गर्मी इसको यहां से मिलेगी। लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म हो जाता है। पानी पानी खुद 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है जब डी पॉइंट पर पहुंचता है, यानी इस एरिया में, इस गल्फ में। ये जो गल्फ है इसमें जब पहुंचता है पानी तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा उसका टेम्परेचर हो जाता है, इट हीट्स अप। अगर ऐसा है और यहां से जो चीज निकलेगी अब बाहर, जो भी चीज इस गल्फ से, गल्फ ऑफ व्हाट, इसका क्या नाम है? ये कौन सी गल्फ है? बात देखो, फ्लोरिडा वोरिडा बता रहा है। भाई मैक्सिको नहीं है ये, कहा है स्थिति खराब की हो तो। गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना भाई। ठीक है, तो इस गल्फ में से यहाँ गर्मी, इसको खुद सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है इस इलाके में, और यहाँ इसका सोर्स माना जाता है। जो गर्मी है, जो गर्म स्ट्रीम है, उसका सोर्स यहाँ शुरू होता है, इसका नाम पड़ जाता है गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम फिर नॉर्दर्न अटलांटिक करंट के रूप में और अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में ऊपर चली जाती है ऐसे, इसी कोस्ट के सहारे 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 सहारे। और इसको मोड़ने वाला कौन है? कॉरियोलिस फोर्स भी है, और कोस्टल जो लैंड मास है उसके भी सहारे सहारे ये चलती चली जाती है। तो आपके हिसाब से कितना होता होगा?
ये जो है गल्फ स्ट्रीम जो चल रही है कितने स्पीड से चलती होगी, अंदाजा दे, बस ऐसे ही मारिए। पचास मिनट पर सेकंड, ऐसे बताओ ना, 50 मीटर पर सेकंड। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे आम बोलचाल भाषा में बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा टाइप से, तो समझ में आ जाएगा ना, आप कोरिलेट कर पाएंगे। खैर ये कोई ट्रिविया नहीं है, ये थोड़ा सवाल आएगा उसमें, बस जाने रहो कि एक आपको आइडिया होना चाहिए फेयरली, कि समझो ना 6 7 8 7 8 किलोमीटर की स्पीड रहती है पर घंटे की, ठीक है, 7 to 8 किलोमीटर का स्पीड रहता है इसका। और ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग कि पहले जमाने में क्या होता था, जब चिट्ठी उट्ठी लेके और ये सब करके जब कुरियर यहाँ से चलता था, पहले की शिप्स में बहुत इंजन इंजन तो होता नहीं था, तो उनको जरा भी कुछ मदद मिल जाए तो उनकी स्पीड बढ़ जाया करती थी। तो वो जो है गल्फ स्ट्रीम के को जब ऐसे करके जाते थे तो उनको जो है बहुत आसानी पड़ती थी, और लौटते समय कठिनाई पड़ती थी, ठीक है, लौटते समय उनको वही कठिन पड़ता था, ज्यादा समय लगता था। तो इस तरह से उसका जो है वो डिस्कवरी हुई कि यहाँ पर कुछ तो है जो मदद कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे जेट स्ट्रीम की जो है डिस्कवरी हुई थी, कि जो है फाइटर जेट्स, जो वर्ल्ड वार के समय पे पता लगा था कि एक तरफ जाने में ज्यादा डीजल खर्च हो रहा है, ज्यादा मेहनत लग रही है, एक तरफ कम लग रही है, ठीक है। इसका एक गल्फ स्ट्रीम अगर है तो नदी जैसा ही हुआ, तो इस नदी की चौड़ाई लगभग कितनी होती होगी, अंदाजा थोड़ा सा आदमी को होना चाहिए, कितना चौड़ा होगा ये नदी, समंदर के अंदर जो नदी चल रही है वो कितनी चौड़ी होगी। 100 किलोमीटर जैसा मान लो, छुट्टी करो, 100 किलोमीटर जैसा इसकी चौड़ाई ऑन एन एवरेज रहती है। अच्छा तो ये तो हो गई, और गहराई, गहराई भी तो होती होगी, इसकी गहराई कितनी होगी, लगभग अंदाजन बस मारते जाओ। समझ रहे हो ना हमारी बात जो हम कह रहे हैं, कि आप लंबाई जो चौड़ाई है वो समझ जाइए भाई, गहराई समझ जाइए, स्पीड समझ जाइए, मैटर हो गया। तो ऐसे याद कर लो, हमेशा के लिए दिमाग में रहे आपके, कि 1 किलोमीटर गहरा, मोटा, डीप, 1 किलोमीटर ऐसे, 100 किलोमीटर ऐसे, और स्पीड है समझो 7 8 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। कुल मिलाकर बात ये हो गई। लेकिन ये सब बताने के लिए थोड़ा है, लेकिन अच्छा लगता है जान के, ऐसा ऐसे माइसी वाटर जो है फिनोमिनन के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, आपके यूपीएससी के हिसाब से इसका क्या रिलेवेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैक्ट्स ठीक है, इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन कैसे, इसका महत्व क्या है, गल्फ स्ट्रीम का जो है वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। गल्फ स्ट्रीम का, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, आप जानते हैं कि एक वार्म करंट है, यहाँ से गर्मी गर्म को लेकर और यहाँ पर रिलीज करता है। ओशियानिक सर्कुलेशन का जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है उसका काम ही यही है, कि इक्वेटोरियल जो एरिया है उससे टेम्परेचर या हीट को जो है एब्जॉर्ब करो और ले जाके यहाँ रिलीज कर दो, ताकि तापमान का जो जिसे कहते हैं समन्वयन वो बना रहे, बैलेंस जो संतुलन बना रहे। यही काम हवा भी करती है। ये जितने भी वॉकर सेल, हेडली सेल, जितना भी चल रहा है ये सेल, ये सब हवा के सेल्स क्यों चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऊपर उठती है, फिर ऐसे फैलती है, फिर नीचे आती है, आखिर हो क्या रहा है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है। तो यही काम ये भी करते हैं, यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया और जो है हीट रिलीज कर दी, ठंडी हो गई, सिंक करके नीचे से वापस आ गया पानी, ठीक है। ये पानी ऑलरेडी ठंडक एरिया से आ ही रहा है सारा, ठीक, ये भी आप समझते हैं। ये ग्रीनलैंड है, आप जानते ही, तो यही कहीं पे जो है वो सिंकिंग वाला जोन होगा, आप समझ सकते हैं। हमने इसका क्रॉस सेक्शन जो है पढ़ा था, आपको याद होगा, कि ऐसे काट दिया जाए तो इधर अंटार्कटिका है, इधर ग्रीनलैंड है, यहां से भी पानी डूबता है और इस तरफ से भी पानी डूबता है नीचे की तरफ, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड के बारे में बताइए मुझे, कि ये जो लैटिट्यूड है लगभग समझ लीजिए, या ये वाला लैटिट्यूड कह लीजिए, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये कौन सा लैटिट्यूड हुआ, जरा देख के बताइए तो। चालीस डिग्री नॉर्थ ना, हाँ देखो 40 डिग्री नॉर्थ ये हो गया, ठीक है। अब इस जगह
इस एरिया को, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये जो इलाका है ये पूरा, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ पे अगर देखिए तो ये कौन से जोन में हम चले गए, जो हम लोग बोलता रहते हैं ना कि इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, तो ये कौन सा जोन है उसके हिसाब से अब हम कहां पहुंच गए। कितने से कितने तक रहता है भाई सब ट्रॉपिकल? क्या है बेटा सब, आप जल्दी बताओ ना आंसर, इसमें भी कंफ्यूजन रखोगे तो कैसे चलेगा, जब आपको जो है लैटिट्यूड्स बताए जा रहे हैं। सिंपल सा, तुम इतना ही याद रख लिया करो, और इसमें इसमें भी अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पे लग जाओगे तो कितना याद करोगे, लॉजिक से भी तो समझ लो सारा चीज, आप लॉजिक से चीजों को समझ लीजिए, अपना वो तो याद रखो कम से कम, कर्क रेखा और मकर रेखा को दिमाग में बैठा लो, और वहां के रेफरेंस पॉइंट से सब चीजों को फिर जो है वो क्या करो, ठीक है ना, वह उसी का रेफरेंस पॉइंट ले लिया करो। तो इस इलाके में ये जो इलाका दिख रहा है 40 के बियॉन्ड, 40 डिग्री के बियॉन्ड ये जो आपको इलाका दिख रहा है, इस इलाके में एवरेज टेम्परेचर होने की क्या संभावना है? कोल्ड होगा, मॉडरेट होगा, या फिर हॉट होगा? विंटर्स में, चलिए विंटर्स बोल देता हूं मैं, आपको हिंट देने के लिए बोल देता हूं कि जो सूर्य महाराज हैं वो नीचे चले जा चुके हैं, ठीक है, दक्षिणायन होकर नीचे चले गए हैं, तो यहां पर क्या स्थिति होगी? अपने यहाँ क्या स्थिति होती है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा दिमाग में, हम तो बहुत नीचे हैं ना, हम तो इधर हैं, कहाँ गए? कितना समय बर्बाद कराते हो तुम लोग खाली, क्योंकि लॉजिक से सोचने का प्रयास नहीं करते हो। हाँ, आप तो यहाँ पे है ना भाई, यहाँ पर इस इलाके में, मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको लेक्चर, हम लोग तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जाड़े में क्या हाल हो जाता है ये बताओ, वहां की तो बातें न करो, हर चीज को इस तरह से बच्चों की तरह एक्सप्लेन करके थोड़ा समझाना पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या स्थिति है, फ्रीजिंग कोल्ड होगी, फ्रीजिंग कोल्ड जिसे कहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द वार्मथ दैट दिस गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग्स, ये जो गर्मी, गर्म पानी का एक 100 किलोमीटर का एक इलाका जो बना देती है यहाँ से यहाँ तक, उसकी वजह से यहाँ के जो भी ये एरियाज हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड के समय में भी इसी लैटिट्यूड पर, आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, ठीक है, इस इलाके में देखेंगे, इसी लैटिट्यूड पे आप प्रोजेक्ट करते जाइए तो आप पाएंगे कि बाकी जगहों की तुलना में इसकी वजह से, गल्फ स्ट्रीम की वजह से, इसके संपर्क में आने वाला जो वातावरण है वो बहुत ही बढ़िया, एक्सट्रीमली मॉडरेट, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता है, एक्सट्रीमली मॉडरेट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहते हैं, ठीक। पहला ये, अब इसको आप एक आसान भाषा में भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात की, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, उस तरह से कभी सोचिएगा तो मजा आएगा। चलो बताओ जरा चैट बॉक्स में कि भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए, कह लीजिए, या जो भी लोग बाहर से आके कब्जा किया, ठीक है, जो अपना इसको कॉलोनाइज करने की कोशिश किया, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज के लोग आए थे, ये बताओ। क्या क्या लिख रहा है भाई? पोर्तुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं। अच्छा, इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो क्या, कि पहले कौन आया था और बाद में?
खैर कोई जरूरत नहीं है, ये तो ज्योग्राफी का क्लास है, आप लोग जानते होंगे। कुल मिलाकर मुझे इतना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब जरा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप एक बार देखते हैं, रुको देखें इसमें आता है कि नहीं। कौन सी वेबसाइट है भाई, बाद में दिक्कत ना करे। चलो देख लो, इसमें क्या मैप में क्या कर लेगा कोई, कॉपीराइट को चोरी थोड़े कर रहा है। देख रहे हो भाई, सबको दिख रहा है यूरोप का मैप ठीक से? ओके, अब हम साथ साथ तुमको कंपैरिजन कराते हैं, कंपेयर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपस में कैसे एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये गल्फ स्ट्रीम आ रही है। गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ पे आती है ऐसे, एक हिस्सा इधर बट गया, इधर बट गया, इस पूरे इलाके का जो टेम्परेचर है, जो कि फ्रीजिंग कोल्ड होना चाहिए था, अगर लैटिट्यूड वाइज इसका वो किया जाए, विंटर में इसको फ्रीजिंग कोल्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन क्लाइमेट इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट्स माना जाता है धरती पे, आप नहीं जानते क्या? यूरोपियन क्लाइमेट को बहुत अच्छा मानते हैं, वहां पर बहुत प्रोडक्टिव क्लाइमेट माना जाता है, बहुत बढ़िया क्लाइमेट, एडवेंचर करने वाला क्लाइमेट माना जाता है। तो वो किसकी वजह से माना जाता है? इसकी वजह से, इस ये जो गर्मी लेके आती है उसकी वजह से, जो थ्योरी है वो यही है कि उसकी वजह से इस पूरे इलाके का, इस पूरे पट्टी का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसी को कंपेयर करिए कि गल्फ स्ट्रीम कौन कौन सी कंट्रीज में स्पेशली जो है वो टेम्परेचर को अच्छा कर देती होगी। बताइए भाई, कौन कौन सी कंट्रीज में करेगा? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ऐसे आएगा पानी इधर से, गर्मी लाएगा इसमें, इस सब इलाके में, तो नीदरलैंड्स का करेगा, बेल्जियम हो गया, चलो ठीक है, फ्रांस का करेगा, स्पेन का करेगा, पुर्तगाल का करेगा। और यही लोग आए थे, यही लोग तो पूरी दुनिया में बाहर गए थे कि हम इसको कब्जिया लें, उसको कब्जिया लें, नहीं तो कंबल ओढ़ के ठिठुरे हुए पड़े होते अपने अपने घरों में, बाहर निकलने का हिम्मत नहीं होता। इनके पोर्ट्स जो होते हैं फ्रीज हो चुके होते, इनके जो जो जहाज है वो चल नहीं सकते थे, नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट दैट यूरोप गिव देम, they had the guts to venture out, otherwise they would have been restricted। समझे भाई? तो ये है मामला कुल मिलाकर। इसलिए ऐसे चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ऐसे इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ना सीखना भी चाहिए। खैर वापस आते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम का एक तो ये हो गया। दूसरी बात और क्या कर सकता है गल्फ स्ट्रीम? क्या, हम जनरल बात करते हैं, जनरली जो है ओशियानिक करंट्स का इंपैक्ट और क्या क्या हो सकता है। न्यू फाउंडलैंड एक जगह है, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड का एक, आप जानते ही होंगे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, इजी इजी। अब आपको रिलेट कर पा रहे हैं कि न्यू फाउंडलैंड ये जगह हो गई पूरी, ठीक है। इधर से कौन सी धारा आ रही है? गल्फ स्ट्रीम। और उधर से कौन सी धारा आ रही है? बताओ बताओ बताओ, ऊपर से कौन सी धारा आ रही है? अब तो इतना अच्छे से सब लोग बता दिए हैं कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं है ना। लैब्राडोर धारा आ रही है। लैब्राडोर कैसी है? कोल्ड करंट है, बिल्कुल सही जवाब। और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? वार्म करंट है। कोल्ड और वार्म करंट मिलेगा तो क्या होगा? बढ़िया से अपवेलिंग, मिक्सिंग, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी? कोल्ड और वार्म करंट जहां पर मिलेंगे, जोन ऑफ मिक्सिंग बन जाएगा, यस, जोन ऑफ इंटर मिक्सिंग बन जाएगी, और एक मॉडरेट जैसा टेम्परेचर बन जाएगा। मॉडरेट जैसा टेम्परेचर बन जाएगा तो वो जो वहां पर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनेंगी, वो कैसी कंडीशंस बनेंगी? वो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस बनेंगे, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे, प्लैंक्टॉन्स को ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे, वहां पर
टेम्परेचर मॉडरेशन हो जाने की वजह से प्लैंक्टॉन्स अच्छे से ग्रो कर सकेंगे, ब्लूम करेंगे। अगर प्लैंक्टॉन अच्छे से ग्रो करेंगे तो फिश पॉपुलेशन जो है वो बहुत मैसिवली ग्रो करेगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये इलाका फिशिंग के लिए मशहूर होना चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर हमारा सिद्धांत सही है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है, तो फिर यही क्यों, जहां भी ये सिचुएशन होगी कि इधर से गर्म और उधर से ठंडा, जहां भी वो मिल रहे होंगे वही फिश के लिए मशहूर होना चाहिए फिर तो क्या ऐसा है? देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। ऐसा और कहां सिचुएशन बन रही है? देखो, ये वाली सिचुएशन जो अभी देखी वो और कहां बन रही है? यहां बन रही है। ऐसे ऐसे और ऐसे भी है, बनेगा कहीं? नहीं नहीं, यहाँ तो लैंड मास पड़ जा रहा है ना, समझे बात? या बार बार हर चीज बतानी पड़ेगी? ये बताओ। यहाँ भी समंदर होता तो यहाँ भी बन जाता वही सिचुएशन, लेकिन यहाँ तो लैंड मास आ गया और लैंड मास घूम के इधर आ गया। ये देखो, तो दो जगह पे ऐसी सिचुएशन बन रही है, इधर और इधर, मुख्य रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑफ कोर्स। तो ये जो करंट है और ये जो करंट है वो एक दूसरे के जुड़वा भाई या जुड़वा बहन ही समझो इनको, ठीक है? यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आके मिलते हैं, यहाँ पर क्यूरोशियो और ओयाशियो आकर मिलते हैं, ठीक है? यहाँ गल्फ स्ट्रीम ऐसे ड्रिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ क्यूरोशियो ड्रिफ्ट हो जाती है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के रूप में। सिंपल है एकदम, बहुत ही सिंपल। समझ गए? यहाँ पर सब पोलर जायर बनता है, ये नॉर्वेजियन, और यहाँ पर अलास्कन करंट के नीचे सब पोलर जायर बनता है। सिंपल, सब एक दूसरे का जेरॉक्स कॉपी है, समझो। म्यूटाटिस म्यूटेंडिस जिसे कहते हैं, कि जो थोड़ा बहुत परिवर्तन है हो, वरना कंसेप्चुअली सब सेम है। तो यही घटना, यही क्लाइमेटिक जो फिनोमिनन है, यही जो ओशियानिक फिनोमिनन है, वो यहाँ भी हो रही है। तो यहाँ ये कौन सा कंट्री है? देखो, अपने आप देख लो कौन सा कंट्री है ये। वहां पर अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट था, यहाँ पर देखो जापान है। तो ये बात सही है क्या कि जापान जो है वो, जापान के आसपास का जो इलाका है वो वर्ल्ड के सबसे रिच फिशिंग ग्राउंड में से है, और जापान में फिश इंडस्ट्री अपने आप में बहुत फलती फूलती है? सही बात है ये? तो कोई अब पूछे कि काहे ऐसा होता है, तो अब तुम जानते हो। ये भी समझ गए भाई। अब हम तुमसे एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताते हैं, और उसका भी आप आंसर देने का प्रयास करिए। कि अगर कभी हम सवाल में आपको घुमाना अच्छा ये बताइए, आपने अभी तक जो भी अवेलेबल नॉलेज इकट्ठा की है अपने लिए, उसके आधार पर मैं आपसे पूछता हूं सवाल, कि कोरल रीफ्स जो होती हैं, कोरल रीफ, मूंगा, वो जनरली ये इस पूरे विस्तार में कहां होने की संभावना ज्यादा है उनके? जिन कंडीशंस में वो फलते फूलते हैं, जीते हैं, वो कंडीशन कहां पाई जाएगी? इस पूरे विस्तार में का मतलब समझ रहे हो ना? यानी मैं इंटरेस्टेड हूं लैटिट्यूड वाला जोन जानने के लिए, कि उनके उनके लिए जो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं वो कौन से लैटिट्यूड में। क्या लिख रहा है? मेजर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सही बात है ना भाई? हाँ, मतलब आप लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, मैं ठीक है, संतुष्ट हूं इस आंसर से कि आप पहुंच गए। तो कुल मिलाकर जो जोन की बात हो रही है वो इसी पट्टी में हो रही है ना। ये पट्टी, ऑस्ट्रेलियन वाली पट्टी देख ही रहे हो, इसी पट्टी की बात हो रही है ना, ऊपर और नीचे, यही यहीं पर ज्यादातर कोरल को देखते हैं। अगर इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैप हो तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है? हट।
चलो बढ़िया। एक मिनट, कोई है जो मुकदमा दायर करे जल्दी। एजुकेशन वाला कोई स्पॉट है? लग तो रहा है ये तो यूनिवर्सिटी है, तो इसका इसका देख लेते हैं फिगर हम। देखिए ज्यादातर, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कोरल रीफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादातर किस एरिया में है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज जो है मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस बात की संभावना कैसे बन पड़ी कि यह यहां इस इलाके में भी, अगर मैं कहूं कि कोरल रीफ जो है वो यहां तक भी पाई जा सकती है, तो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि कोरल रीफ जो है आधे डिग्री टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होता है। यू ऑल नो दिस, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा क्लाइमेट के टर्म्स में। तो फिर जब इतनी तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है तो यहां जीने वाला जो कोरल रीफ है, इस बेल्ट में जीने वाला, वो यहां कैसे जिंदा रह सकता है भला? समझ गए आप? उत्तर आप जान गए, ऑलरेडी समझ गए कि वो वहां पर इसलिए जिंदा रह रहा है क्योंकि यही वो करंट्स हैं जो उस एरिया को गर्म बनाए रखती हैं। उस एरिया को गर्म बनाए रखेंगे तो यहां भी कोरल रीफ पैदा हो जाएगा, जन्म जी सकेगा, वरना नहीं पॉसिबल है, वरना नहीं जी सकता कभी भी। समझ गए बात? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हम क्या सीख सकते हैं भाई इनके बारे में? और भी क्या कोई चीज है जो जान सकते हैं? धीरे धीरे सारे इफेक्ट्स हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर एक बात आती है फॉगी कंडीशंस की, कि फॉग जो है वो पैदा हो जाता है और यहाँ पर इस इलाके में बहुत ही ज्यादा धुंध जैसा इलाका हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ बहुत स्पेशल चीज नहीं, गर्म और ठंडा जहां पर मिलता है उसी जगह पर जो है वो फॉगी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द मीचिंग ऑफ दिस करंट्स, फॉगी सिचुएशंस अराइज एंड दे पोज प्रॉब्लम्स इन नेविगेशन, इन शिपिंग एंड ऑल, ठीक है। बहुत सारे आइस, लैब्राडोर करंट जो है वो बहुत सारा आइस वगैरह को तोड़ के भी ले आती है रास्ते में जो है वो, तो इसी की वजह से है जो थोड़ा बहुत मेंटेन रहता है। क्यूरोशियो का एक दिक्कत और है, गल्फ स्ट्रीम का तो मोर और लेस कोर्स जो है वो ठीक है, कंसिस्टेंट है। क्यूरोशियो की एक दिक्कत कह लो या उसका कैरेक्टर है कि वो मियांडरिंग भी करती है, जैसे हमारे नदियां करती हैं वैसे मियांडर भी करती है कई बार। तो जो मियांडरिंग भी है, मियांडरिंग की इसकी साइकिल है, वो भी कई बार सब कुछ इधर से उधर कर देती है, तहस नहस टाइप का, कि जहां पर पहले हो रहा था सारा प्रोडक्टिविटी वगैरह वहां से खिसक गया, शिफ्ट हो गया। तो दैट इज ऑल्सो एन इशू, ओके। एक और बात आपसे पूछते हैं, चलिए हम इसको सर्च करके देखते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। पहले तो गूगल में कर लेते हैं। हमारे मैप में भी दिख रहा है क्या? एक मिनट में इसी मैप से समझते हैं, चलिए इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर सहूलियत हो जाएगी थोड़ी आपको, मैं कॉपीराइट नहीं उल्लंघन करना चाहता किसी का, कोई एजुकेशनल वेबसाइट होगी तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। स्टडी ब्रिटानिका, रिसर्च गेट का सहारा लिया जा सकता है। ये मिल गया, गर्म मिल गया, सरकारी चीज मिल गई तो अच्छा है। हाँ भाई देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन बयान किया जा रहा है इसमें, बताइए जरा। आप जो देख रहे हैं उसमें डेजर्ट्स, जो वर्ल्ड के हमारे डेजर्ट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाया जा रहा है, ठीक बात है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई? एक प्रश्न उठना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जब हम अभी तो हम ओशियानिक करंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें डेजर्ट्स क्यों पढ़ने लगे हम अचानक से? डेजर्ट का तो टॉपिक है नहीं, वो तो आपको खुद होमवर्क करना था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इनफैक्ट इस पर अगर मैं ध्यान है मुझे तो इस पर प्रश्न भी आ चुका है, एक बार, एक या दो बार प्रश्न आ चुका है, और अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि जो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं वो हमेशा जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी वेस्टर्न मार्जिन पे ही जो है वो पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों पाए जाते हैं, इस प्रकार का सवाल अगर तुम लोग बताओगे वैसे तो, कि मुझे जो ध्यान आ रहा है कि इस पर सवाल आ चुका है, इसको पूछा जाता है कई बार, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं, और भाई अगर हो सकता है कि एक्सप्लेन करने को बोल दे मेंस में, ज्योग्राफी में। तो जनरली वेस्ट कोस्ट पे ऐसा क्यों होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन हैं वो डेजर्ट में तब्दील हो जाती है? तो उसकी एक जो थ्योरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, 3-4 फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ
or the scope of this particular lecture, but still I will just briefly touch upon them. The main reason for mentioning that is because we are studying currents here. तो करंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मैं अभी बता देता हूं, बाकी ब्रीफली बता दूंगा. ये करंट का पोजीशन क्या है ये बताइए. यहां पर जो कौन सी करंट पाए जाने की संभावना है इस मार्जिन पे, इस मार्जिन पे, इस मार्जिन पे, इस मार्जिन पे, दोनों ही हेमिस्फीयर की बात कर लीजिए आप, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों की बात कर लीजिए. यहां से क्या चलता है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम चला, गल्फ स्ट्रीम यहां पर आया, अपना हीट जो है लूज कर दिया, कोल्ड करंट बन गई, यहां से कोल्ड करंट, यहां पर, यहां भी कोल्ड करंट ही होगा. अब इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या होता है, बाएं मुड़ जाती हैं, यहां पर आके बाएं मुड़ेगी, वो बाएं मुड़े, ठंडी होती गई, ठंडी होती गई, बाएं मुड़ के बाएं मुड़, गर्म होते होते यहाँ हीट लूज कर दिया, ठंडक हो गया, यहाँ पर वापस आ गए. तो ये भी कोल्ड करंट का हिस्सा है, ये भी कोल्ड करंट है, ये भी उसी तरह से कोल्ड करंट बनेगा. इज दिस अंडरस्टूड? ये जितने भी आप एरियाज देख रहे हैं वो कोल्ड करंट्स के एरियाज होंगे. नहीं समझ में आए तो सड़क से ये देख लो, साथ साथ देखते चलो ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए. ठीक, मेन एरियाज को आपने देख लिया. कैलिफोर्नियन करंट, पेरू करंट, पेरू करंट हो गया, कैनरी करंट, पेंगुएला करंट, समझ गए आप. और फिर से तुरंत फिर से स्विच कर जाइए, देखिए डेजर्ट्स कहां कहां पे हैं. यहीं पे तो है डेजर्ट, सारे बड़े वाले सारे डेजर्ट देखिए यहीं पे हैं. तो ऐसा क्यों है भाई, क्या कारण हो सकता है इसका? डेजर्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है डेजर्ट के लिए? डेजर्ट किसी को कब कहा जाता है कि अरे मारो तो मुंह सूख जाए आदमी का, मर जाए, बिना पानी के मर जाए, तो बोलते हैं डेजर्ट पे. रेगिस्तान की बात करिएगा तो सबसे पहले मॉइस्चर की ही तो बात आएगी, टेम्परेचर वगैरह तो बाद की बात है, पहले मॉइस्चर ही तो बोलेंगे. तो मॉइस्चर कंटेंट जो है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है किसी भी डेजर्ट में, उसके कैटेगराइजेशन का, है कि नहीं है? तो अगर ऐसा है तो अब आप देखो कि अगर ऐसा है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जब यहां से ठंडी धारा आ रही है तो यहां डेजर्ट नहीं होना चाहिए. ये आपके दिमाग में आ सकता है. दैट विल नॉट बी करेक्ट लॉजिक, आई टेल यू व्हाई. ये जब ठंडी ठंडी धाराएं आ रही है तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो ठंडक है तो अच्छी बात है, यहाँ पर तो रेगिस्तान नहीं होना चाहिए. इसका टेम्परेचर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, करंट का टेम्परेचर कंट्रीब्यूशन नहीं. मॉइस्चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है कोल्ड करंट का? तो दो तीन चीज समझ लीजिए साथ में, अकेला फैक्टर जिम्मेदार नहीं है. सबसे पहली बात तो ये कि ये जोन है जो, वो जोन कौन सी विंड का जोन है ये बताइए. ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी में विंड कौन सी चलती है पहले ये बताएं. हमने अभी देखा, फटाफट आपको दिखाता जाता हूं ताकि फिर से कंफ्यूज नहीं हो आप. अरे भाई, ये देखो, यहां से देख लो, फट से तुरंत ही समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है. जिस भी इलाके की हम बात कर रहे हैं, देखो स्पेशली, चलो अभी अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए आपके समझने के लिए. अफ्रीका के एग्जांपल ले लीजिए. नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड चल रहे हैं कि नहीं? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होंगी कि नहीं होंगी यहां से? ठीक बात है. नीचे का भी उदाहरण ले लीजिए, तो इधर से साउथ ईस्टर्ली ही तो आएगी, विंड्स साउथ ईस्टर्ली आएगी. तो अगर उनको उनके रास्ते में, अगर इन हवाओं को इनके रास्ते, हवा ऐसे चल रही है और ऐसे चल रही है, इधर ऐसे इधर ऐसे, अगर उनमें मॉइस्चर कुछ हो भी, पहली बात तो इधर इनके लिए मॉइस्चर का कोई जगह नहीं है. यहाँ चलो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कलेक्ट करने का इनके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ मॉइस्चर थोड़ा बहुत कलेक्ट हो सकता है. अगर मॉइस्चर उन हवाओं में आ भी जाए तो अगर मॉइस्चर का प्रेसिपिटेशन होगा तो इस इलाके में होगा ना. वेस्टर्न मार्जिन तक पहुंचते पहुंचते तो मॉइस्चर रह नहीं जाएगा उनके पास. दे विल बी कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ ऑल मॉइस्चर. फाइन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? फैक्टर नंबर 1. So this was the factor number 1. Factor number 2, that ultimately, especially in this case, in the case of the two Americas,
you know that there is a mountain barrier here, the fold mountains, रॉकी और एंडीज पर्वतमाला है। तो वो हवा अगर आ भी रही है तो ये वाला जो इलाका है, ये मार्जिन है, वो उसके वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये फिजिकल फैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा? फिजियोग्राफिक फैक्टर जिसे कहते हैं, वो उसके रेन शैडो एरिया में पड़ जाएगा। नंबर 2, समझ गए? भाई रिपीट क्या है रमाकांत? मैं ये कह रहा था कि अगर मॉइस्चर इनमें यहां से इस सी सरफेस से कुछ मॉइस्चर कलेक्ट कर भी ले तो अल्टीमेटली दे हैव मेनी माइल्स टू गो एंड रीच दिस एरिया। बिफोर दैट इफ रेनफॉल हैपेंस देन ऑल द मॉइस्चर विल बी डिप्लीटेड हियर ओनली। इवन इफ द विंड क्रॉसेस दिस एंटायर एक्सपेंस इट विल नॉट हैव एनी मॉइस्चर लेफ्ट विद इट टू प्रेसिपिटेट इट हियर। तो सारा मॉइस्चर तो वहां रह गया। दूसरी बात, अगर यहां आ भी गए मॉइस्चर लेके तो पहाड़ से लड़ जाएंगे और रेन शैडो एरिया इधर है, जो बारिश होगी वो इस तरफ हो सकती है। देखो दिख भी तो रहा है, तो यहाँ का एरिया जो है वो मॉइस्चरलेस रह जाएगा दोनों ही केस में, ऊपर और नीचे दोनों ही केस में। और अगर ऐसा है, ये फर्स्ट वाला समझ में नहीं आता है भाई रमाकांत, इफ यू वांट अ क्लैरिफिकेशन देन यू प्लीज राइट इट, ओके, यू मेंशन इट माय डियर। ठीक है, तो एक पहला फैक्टर हम क्या समझे? विंड्स का डायरेक्शन इटसेल्फ, कि कौन सी विंड है जो मॉइस्चर ला पाएगी और नहीं ला पाएगी। दूसरा क्या समझे? कि अगर जो डायरेक्शन इस तरह से है कि अगर वो पहुंचेगी भी लैंड एरिया में तो पहले यहीं पर सब हो जाएगा इसका काम, आगे पहुंचते पहुंचते बचवा नहीं करेगा मॉइस्चर। अगर कुछ मॉइस्चर बच भी जाए तो फिर ये माउंटेन बैरियर है ना रमाकांत? एवरीबडी इज गेटिंग इट ना? तो 3 factors we studied till now. Now I'm going to take you to the 4th factor. What is that 4th factor, my dear? The 4th factor is this, our current topic which we are studying, that is cold current. कहीं भी अगर सी सरफेस टेम्परेचर कोल्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर इवेपोरेशन का पॉसिबिलिटी होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा कि कम? मोर और लेस? इफ द सी सरफेस टेम्परेचर इज लेस तो इवेपोरेशन तो कम होगा भाई। समझ गए बात? तो बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंटायर बेल्ट, हम 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर की बात, इतने चौड़े चौड़े जो बेल्ट है मान लीजिए, ऑफ कोर्स अलग अलग करंट की चौड़ाई अलग अलग होगी, डोंट टेक इट दैट वे। तो जो भी कोल्ड करंट वाला ये पूरा एरिया है, इसके ऊपर का सी सरफेस टेम्परेचर कम होने की वजह से अगर इस पे इंसोलेशन पड़ता भी है तो ये उस लेवल का इवेपोरेशन नहीं कर पाएगा। और यहां पर इवेपोरेशन नहीं होगा तो हवा में, ऊपर की जो हवा है उसमें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। इट विल बी अ डेसिकेशन जोन, डेसिकेटेड जोन होगा, सूखा इलाका होगा। समझ गए बात को? तो इन सभी फैक्टर्स के, अगर ये 4 फैक्टर्स आप समझ ले तो फाइन। एक और फैक्टर है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, हम जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। आई विल टेल यू, डू नॉट वरी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर सीधे सीधे आपके समझ में आ जाएंगे आपके अवेलेबल नॉलेज के आधार पर। 5वां इसीलिए रोक रहा हूं कि जब मैं बता दूंगा जेट स्ट्रीम क्या है तब आपको बताएं। इज दिस अंडरस्टूड टिल नाउ? तो जहां भी कोल्ड करंट होगी वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो उसके ऊपर के हवा की है वो कम होगी। अगर हवा में मॉइस्चर ही नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। उस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो जो लोकल कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती थी वो भी नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम अच्छे से ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होने नहीं पाती है क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में पड़ता है। हवा में मॉइस्चर हो सकता है आए नहीं आओ, यहाँ तो अभी नहीं करेगा, यहाँ तो फिर भी आ जाए। और जो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती थी यहाँ से उठ उठ के जो है मॉइस्चर बन के क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं ना, एवरीबॉडी नोज दिस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो इक्वेटोरियल रीजन में बना करते हैं, तो वो उसका भी पॉसिबिलिटी छीन लिया आपने क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसी कोल्ड करंट को, अच्छा यहां तक समझ गए कि नहीं? अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आराम आराम से बताते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़े। फिर तो आप समझ गए कि ये कोल्ड करंट से रिलेटेड कितने अलग अलग तरह के प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं और वो किए जा सकते हैं फंसाने के लिए। इधर से उधर कुछ भी पूछे, एकदम घबराना नहीं है। आप अपना लॉजिक जो फंडा है वो हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह से पूछे, हो सकता है आपसे याद आ गया, हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ ले कि जो है डरबन, अगर डरबन के टेम्परेचर का, डरबन के जो टेम्परेचर है और किसी और सिटी का नाम दे दे, इस साइड का मान लो, ऐसे फंसाएगा कि इस साइड की किसी सिटी का नाम दे देगा, उधर का, वहां के और वहां के टेम्परेचर में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस क्यों हो, जबकि वो सेम लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो आप फट से बता दीजिए कि जो है ये बेंगुएला करंट है
उसके इफेक्ट में आने की ओशियानिक करंट की वजह से, यहाँ कोल्ड करंट है और इधर हॉट करंट है, वार्म करंट है, इसलिए ये डिफरेंस है। तो ये सब चीजें आप मोजाम्बिक करंट भी बोलते हैं ना उसको। तो मोजाम्बिक करंट जो है डरबन के साइड में है, तो वहां पर गर्मी रहेगी ज्यादा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा टेम्परेचर रहेगा। और अगर इधर देखिए तो यहाँ पर लगभग 5-10 डिग्री कम रहेगा भाई। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो तुरंत होशियार हो जाइएगा कि कहीं ये ओशियानिक करंट वाला सवाल तो नहीं है, तुरंत दिमाग आपका दौड़ने लगना चाहिए उस चीज में। तो इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आएगा तो अब आप, मुझे विश्वास है कि आप हैंडल कर ले जाएंगे। एक और एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन का, जो कि एक रिसेंट रिसर्च का प्रोडक्ट है, वो सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं बताऊंगा अभी, इसलिए कारण क्योंकि वो स्कोप के बियॉन्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन और उसके थोड़े बहुत तो आप समझ भी जाएंगे कारण, लेकिन बता देता हूं खाली इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, गूगल मत करने लगना, ये भी डर लगता है ना कि कहीं पढ़ने न लगो, अपना टाइम न वेस्ट कर लो। बस ये जान लो कि ये जितने इस तरह वाली ये जो करंट्स हैं, इनके जो एक्सटेंशन जोन्स हैं, एक्सटेंशंस जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो इनके एक्सटेंशन जोन्स हैं, वो एक्सटेंशन जोन ग्लोब के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के रूप में काम करते हैं। Obvious explanation can be photosynthesis of the phytoplanktons, isn't it? कि obviously photosynthesis वहां सबसे ज्यादा हो रही है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे, but that is not enough. That explanation alone is not enough, and there are many theories about it which are beyond the scope of this study. So I am just telling you, you should remember that these are also the sites of these two, Kuroshio extension, Gulf Stream extension and Kuroshio extension. ये जो इलाका है, ये it is also one of the biggest hotspots for absorbing carbon dioxide from the atmosphere, that you should know, just for your information. तो अगर आप ये भी समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और इसको आज को खत्म ही कर देना है ना, तो इसलिए इसको निपटा देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम, ये भी समझ गए, अब आपको दिक्कत ही नहीं। इंडियन ओशन वाला भी कितना मजेदार है, देखो अगर आप समझते हो मानसून तो अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जनरली हमने अभी क्या पढ़ा था, याद करो कि जो हमारा ये जो जायर है, ये जायर हमने पढ़ा था ना, आपका मेन वाला फिगर देख लीजिए, मेन वाला डायग्राम ये है, याद करिए इंडियन ओशन वाला, ये इसको ध्यान से देख लीजिए, ऊपर क्या जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है। इक्वेटोरियल इधर से जा रही है, साउथ इक्वेटोरियल इधर से जा रही है, अगुनास करंट इधर से जा रही है, और इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जा रही है। ठीक, याद रखेंगे, ओके भाई, ठीक है। आगे आ जाइए, इंडियन ओशन का बिहेवियर देखिए, इसमें जायर का बिहेवियर कैसे होता है, और इतना इंटरेस्टिंग है कि पूछो मत। बहुत बढ़िया और क्लासिक एग्जांपल है। जनरली ध्यान से सुने मेरी बात को, जनरली ये जो जायर है वो कहां लोकेटेड होगा, साउथ इक्वेटोरियल जब बोल रहे हो तो इक्वेटर तो ये है ना, तो जनरली जो इंडियन ओशन वाला जायर है, ये चक्कर है, ये जो जैसे कहते हो भंवर है, ये जो भंवर है वो साउथ में लोकेटेड है ना भाई, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ तो लैंड है पूरा, तो पानी तो यही है, तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है। लेकिन मानसून के समय क्या, समर्स के समय में क्या होगा, समर के समय में जो ITCZ रहता है ऊपर शिफ्ट होता है कि नहीं, ITCZ का शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, जैसे ही सूर्य महाराज इधर आएंगे, उत्तरायण होकर इधर आएंगे, तो ये सब पूरा तपने लगेगा, कर्क रेखा यहीं से गुजर रही है, ठीक, सब तपने लगेगा, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना भाई, यही तो हमने सीखा है, नहीं भी जानते हैं, कॉमन सेंस से भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो जब ITCZ शिफ्ट होगा तो जो हवाएं, जिन हवाओं की वजह से ये सरफेस मूव कर रहा था, वो सब पूरा शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या गजब का वो है। और ध्यान रखना इस सोमाली वाले पे, ये सोमाली का डायरेक्शन देखो आप लोग प्लीज, देख पा रहे हो ना शायद, हाँ देख पा रहे, ये देखो जनरली क्या हो रहा है, इधर से कौन सी हवा आती है बताओ, समर नहीं हो तो कौन सी हवा आएगी, हमने अभी तक क्या नियम पढ़े हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी हवा चलती है, फिर से वापस तुम्हें ले जाता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, आपको हमेशा एक भी कॉन्सेप्ट में याद नहीं कराना चाहता, आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सी हवा चल रही है, कौन सी हवा चल रही है यहाँ पे, इक्वेटर के ठीक ऊपर कौन सी हवा चलती है, ये देखो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड चलती है कि नहीं, ये तो आप जानते हैं पहले से ही, ठीक बात है, वापस वहीं पे आ जाइए भाई, देखिए भाई नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड चल रही है कि नहीं, हाँ नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड चल रही है, इस वाले को देखो, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है कि नहीं चल रही है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स कुछ भी कह लो,
कुल मिलाकर ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है कि नहीं है। ये ऐसे ऐसे चल रही थी, तो ये सी सरफेस को कहां ले जाएंगे, पानी को इधर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ऐसे सोमाली करंट ये बनेगी, ये बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। ठीक, क्लियर। इक्वेटर के ऊपर है ना, तो इधर से आएगा, इधर से पानी को इधर ले आएगा। फाइन। अब मैं गर्मी बढ़ा रहा हूं, सूरज यहां आ गया, गर्म, ये सब बहुत गर्म होने लगा। ITCZ कहां पे है इस समय, इस एरिया में है कि नहीं है। ये देखो, ये दोनों कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे ITCZ इक्वेटर के आसपास है कि नहीं, यहाँ पे यही, इसीलिए तो कन्वर्ज हो रही हैं दोनों हवाएं। जब गर्मी बहुत बढ़ा देंगे तो लैंड मास इधर ज्यादा है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमक रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा का पूरा जोन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे शिफ्ट होने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आज ही के लेक्चर में वो दिक्कत बात भी हुई थी उसके बारे में। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक विसंगति कह लीजिए या एक विलक्षण चीज और हो जाएगी अगर ऊपर सब शिफ्ट हो गया तो। बताओ, लिखो लिखो चैट बॉक्स में भाई जल्दी प्लीज। इंटरनेट ही थोड़ा सा आज लैग कर रहा है, जब आप लोगों के रेस्पॉन्सेज उस वजह से देर हो जा रहे हैं। अरे इतना देर तो नहीं होता इंटरनेट में। कोई जवाब ही नहीं लिख रहे हो क्या? यू आर नॉट राइटिंग रिस्पॉन्सेज। व्हाट आई एम आस्किंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, दिस एंटायर जोन विल शिफ्ट अपवर्ड्स, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? निर्मल इज राइटिंग विंड डायरेक्शन विल चेंज। हाँ ठीक बात है, कैसे? सब लोग नहीं समझे, अभी तो बात हुई थी। जैसे ही ये ग्रीन वाली हवा जो ऐसे ऐसे चल रही थी और पानी को ऐसे ऐसे ढकेल रही थी और ऊपर से ऐसे आ रहा था, जैसे ये ऊपर इक्वेटर को क्रॉस करेगा वैसे ऐसे राइट साइड में मुड़ने का नहीं स्थिति आ जाएगा, तो सब कुछ ऐसे ऐसे नहीं मुड़ने लगेगा, यही हवाएं ऐसे होने लगेंगी, तभी तो हमारे यहाँ मानसून आता है। तो जब वो ऐसा होगा तो सोमाली करंट भी रिवर्स हो जाएगी कि नहीं हवा के प्रभाव में। ये सब पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा, चिंता ना करो। ये सब समझते चलोगे तो एटमॉस्फेरिक जब हम फिनोमेना पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो भाई ये वाला चीज समझो, और यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अगर ये समझ ले अच्छे से तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ गए, फिर तो समझिए मैदान मार दिया हमने। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। और अभी मैं दूसरा क्यों दिखा रहा हूं, सिर्फ पहला फेज को कंसीडर करिए, और ये किस इलाके की बात हो रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, डू नॉट वरी। देखो ध्यान से देखना, इस इलाके की बात कर रहा हूं मैं। ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका के बीच की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस एरिया, इस इलाके का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ जरा। हवा और पानी, इन दोनों के बारे में जरा सोच के बताओ दिमाग से, कि पानी तो दिख ही रहा है आपको, पानी नहीं दिख रहा है कि इधर से इधर गर्म, फिर गर्म, और फिर यहां से यहां ठंडी, और यहां से यहां ठंडी। याद रहेगा, सिंपल है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे गर्म धारा बहेगी साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहां से ठंडी धारा बहेगी, सिंपल हो गया, ये गर्म और ये ठंडा, साफ साफ बात। हवा का बताओ जरा, हवा का ये कौन सा अक्षांश है और यहाँ कौन सी हवा बह रही होगी, दोनों चीज इमेजिन कर लो, तब हम आगे बताते हैं तुम्हें। ठीक है, अब दिमाग में बैठा लेना। अब हम चलते हैं उस चित्र की तरफ, क्योंकि अब आप इलाका समझ गए हैं। तो ये देखिए, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका इधर है, इंडोनेशिया और ये सब, ठीक, समझ गए बात। जनरली देखो क्या हो रहा है, कोल्ड करंट कहाँ है, ये है कोल्ड करंट। यहाँ क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ कौन सा पूल है, याद है किसी को, क्या बताए थे, वेस्ट पैसिफिक पूल है कि नहीं। यहाँ पर एक गर्मी वाला इलाका तो अभी गल्फ स्ट्रीम के संदर्भ में पढ़ लिया आप लोग, है ना, और दूसरा वाला ये है। दोनों का कितना महत्व है देखिए ना आप, इसीलिए तो बता रहे हैं। तो ये वार्म पूल हो गया, वार्म पूल। अगर ये गर्म, खूब गर्म हो जाता है, हर साल गर्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर ये गर्म होगा तो इसके ऊपर की हवा वो भी गर्म होगी, इस इलाके, ये पूरा इलाका गर्म होगा तो इसके ऊपर की हवा गर्म होगी।
इसका इवेपोरेशन अधिक होगा कि नहीं? वेस्ट पैसिफिक वार्म पूल जो कि बहुत ही गर्म इलाका है, जमीनों से घिरा हुआ है, वो गर्म हो जाएगा कि नहीं? उसके इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, यस। इवेपोरेशन होगा तो राइजिंग एयर में कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल हैवी होगी। ये सब होगा कि नहीं होगा? सब लॉजिक से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा होता है, आप ध्यान से सुनो, जो हमारी पहले की बेसिक नॉलेज थी, तो ये पूरा पानी गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? सी सरफेस टेम्परेचर गर्म होने की वजह से पूरा का पूरा पानी गर्म रहेगा कि नहीं? और ये बहुत डीप तक गर्म रहेगा। ठीक है, तो मेरे कॉमन शब्दों में समझने का प्रयास करना, आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें बहुत डीप तक गर्मी चली जाएगी। और क्योंकि ऐसा है, इसलिए यह पूरा इलाका ही गर्म रहेगा। और इसलिए यहां ठंडक होनी बहुत नीचे से शुरू होगी, और इसलिए यहां जो थर्मोक्लाइन है वो डीप होगा। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? ऑलराइट। जहां पानी इतना गर्म कर दिया गया है कि डेप्थ तक गर्मी घुसी जा रही है, तो जितना दूर तक जाएगी ठंडक होना उतनी ही नीचे से शुरू होगी, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो यहां बहुत डीप तक भी पानी गर्म रहेगा, और इसलिए थर्मोक्लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा होता है कि ये पानी गर्म है तो और बाकी का पानी ठंडा है, क्योंकि उधर कोल्ड करंट है, तो ये बात सही नहीं है कि ये पनिया ऊपर तैरा करेगा, ये पनिया ऊपर तैरेगा और ठंडा पानी नीचे रहेगा। तो इस तरह का एक मिक्स्ड टाइप का वो दो लेयर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अगर थर्मल इमेजिंग करिए तो दोनों का अलग अलग कलर दिखाई पड़ेगा कि नहीं थर्मल इमेजिंग में? और हम ये भी जानते हैं कि ये ज्यादा डेंस है। ठीक, ये ज्यादा डेंस है और ये जो है उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए ऊपर फ्लोट हो रहा है। यहां तक तो ठीक है। और थर्मोक्लाइन जैसे जैसे इस इलाके से दूर जाएंगे, गर्मी कम होती जाएगी ऊपर वाले सरफेस की, थर्मोक्लाइन ऊपर की तरफ आता जाएगा। ये भी हम जानते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा था ना, वो यहाँ का थर्मोक्लाइन है। ये तो हम जानते हैं कि इतने मीटर नीचे जाइए तो फिर तेजी से टेम्परेचर घटता है। यहाँ तेजी से इसलिए नहीं घट पा रहा है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उतना तेजी से घटने के लिए आपको और नीचे जाना पड़ेगा। ये भी क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। समझ गए? क्लियर होना चाहिए इसमें, तो मुझे तो नहीं लगती कोई दिक्कत। अगर है तो आप अदरवाइज भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। अब एक और सवाल का जवाब दे दो, हवा किस तरफ चल रही है? ये इक्वेटर है अगर, तो हवा किस तरफ चल रही है? ये जो तीर है ये सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि नहीं हवा का? यही तो हम पढ़े हैं। ट्रेड विंड चल रही है, तो ट्रेड विंड चल रही है तो पानिया को कहां ले जाएंगी? ये पानी को खींच के कहां ले जाएंगे? वार्म पूल की तरफ ले जाएंगे कि नहीं? ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, उधर ही ले जाएंगे। अगर यहां से सब पानी खींच के इधर ले गए तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी कहां से आएगा, और इस घटना को क्या कहेंगे? शाबाश, ठीक है। तो तुम लोग समझने लगे, इसका मतलब पकड़ लिया तुम ज्योग्राफी को। इधर ले आए पानी, उसको अपवेलिंग हो गई। अगर इस पानी की कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से जा रहा है ना ऊपर। ये तो ज्यादा डेंस था, तो ज्यादा डेंस था इसलिए नीचे पड़ा हुआ, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा या न्यूट्रिएंट्स छोड़ के जाएगा? सब न्यूट्रिएंट्स जितना भी है सब नीचे ही तो पड़ा रहता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, तो सबको ऊपर लेके जाएगा ना। ये बात भी समझ रहे हो कि नहीं? जब भी कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती है तो न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो न्यूट्रिएंट को सरफेस पे ले आता है। और अगर न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे ले जाएगा, आखिर ये झगड़ा क्यों है, ये विसंगति क्यों है? क्योंकि जो लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो ऊपर तैर रहे हैं, क्योंकि सनलाइट चाहिए। फोटिक जोन याद है? फोटिक और एफोटिक जोन पढ़े थे, याद है? फोटिक जोन क्या होता है? जहां तक सनलाइट जाती है वही तो फोटिक जोन है। पानी के विशेष चरित्र के कारण एक विसंगति पैदा होती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो विसंगति ये है कि ऊपर के सरफेस में जो लोग फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जब तक कर रहा है सब तक ठीक है, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा या मरेगा, कोई भी जीव जंतु जो मरेगा तो नीचे डूब जाएगा ना, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे सेटल होंगे कि नहीं सेटल होंगे? तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो गई? सोच कर देखो, जो इसको वापस रिसाइकल कर सकता है
वो तो बेचारा ऊपर के सरफेस में है, उसको वो यूज कर सकता है, लेकिन वो नीचे जाएगा तो यहाँ सनलाइट नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो मसाला नीचे पड़ा है वो ऊपर वाले को जरूरत है, क्योंकि वो वहीं सर्वाइव कर सकता है। तो इस रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग करे कौन? समझ गए बात? जो खाना बना सकता है वो ऊपर है, और जो मसाला है सब नीचे पड़ा है। ये यहां नहीं सर्वाइव कर सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये यहां नहीं मौजूद रह सकता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इज दिस डायलेमा अंडरस्टूड और नॉट? एकदम क्लियर। तो जब भी अपवेलिंग होगी तो ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग ही तो कर देगा, इन लोगों को अवेलेबल करा देगा कि लो। और जैसे ही अवेलेबल हुआ जबरदस्त तरीके से 24 घंटे में कोई भी प्लैंक्टोनिक पॉपुलेशन अपने आप को डबल कर सकती है। बड़े बड़े मासिव एरियाज की बात कर रहा हूं मैं, वो डबल हो सकते हैं 24 घंटे के अंदर। इस लेवल का ग्रोथ होता है, प्लैंक्टोनिक ब्लूम बोलते हैं उसे। तो यहां पर प्लैंक्टोनिक ब्लूम हो जाएगी। तो कहां प्लैंक्टोनिक ब्लूम हो रही है? जब सब कुछ नॉर्मल है तो प्लैंक्टोनिक ब्लूम कहां हो रही है? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर। इज दैट अंडरस्टूड? जहां पे ये तो डिस्कस हो चुका कि यहां डेजर्ट क्यों बनेगा, सबको रिलेट करता जा रहा था, गड़बड़ाने दो। ये साउथ अमेरिका की वेस्टर्न मार्जिन है, कहो हाँ। यहां पर एक डेजर्ट होगा, क्या नाम है उसका डेजर्ट का? अटाकामा डेजर्ट नाम है। पेरुवियन कोस्ट है ना ये भाई, अटाकामा डेजर्ट यहीं पे होता है। तो और नीचे वाले का क्या नाम है? ऑटोकामा नहीं है रे, अटाकामा। चलो खैर, अभी अभी नहीं फंसाता हूं, नाम नहीं भी मालूम होता। पैटागोनिया है ना नीचे, कोई बात नहीं, वो दूसरे टाइप का है, मैं बताऊंगा सुबह। तो ये आप समझ गए, सब लोग समझ गए। यहां से हवा उठेगी गर्म, क्योंकि गर्मी है, यहां पर जाएगी, नीचे फिर बैठेगी, तो यहाँ एक तरह का सर्कुलेशन सेल बन जाएगा। ठीक। और क्योंकि यहाँ सब्सिडेंस हो रहा है, हवा नीचे आ रही है, और यहाँ वैसे भी ठंडक है, और यहाँ वैसे भी मॉइस्चर की कमी रहेगी। तीनों लाइन समझ में आया? तीनों लाइन जो हम बोले फट 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 फट, समझ में आया कि नहीं? एक तो हवा सबसाइड हो रही है नीचे की तरफ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर कोल्ड करंट है। नंबर 3, यहाँ की हवा में मॉइस्चर नहीं रहेगा। ये तीनों चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया कि यहाँ की हवा में मॉइस्चर नहीं रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो यहाँ पे बारिश बारिश जैसी सिचुएशन बनेगी कि नहीं? नो, इट शुड बी अ यूनानिमस नो। यस। तो यहां बारिश होगी और यहां बारिश नहीं होगी। अंडरस्टूड? और यहां पर लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि यहां पर क्योंकि न्यूट्रिएंट ऊपर आ रहे हैं, तो प्लैंक्टॉन्स होंगे खूब। फिशिंग इंडस्ट्री, पेरू, चिले, इन सब की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, कोस्टल फिशिंग जो है, वो बहुत अच्छे से उसको बेनिफिट होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। अब किसी कारण से मान लो जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाए या मामला उलट जाए, ये किस किस कारण से? बहुत बहुत इसके तरीके हैं, बहुत बहुत ऑप्शन, उसके बहुत थ्योरीज हैं, बहुत सारे चलती हैं। अगर किसी कारण से ये जो साइकिल चल रही थी वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, किस कारण से हो सकता है? हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो क्या इफेक्ट होगा पहले आप वो समझ लीजिए। ये बात आप समझ गए। ये तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब ये पूल जो है, जो वार्म पूल था, वो उतना वार्म नहीं रह जाए, तो साइकिल टूट जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड एंड एग्री? If the warm pool, West Pacific warm pool is not as warm as it was, then the cycle gets broken. Do you understand this? All right. So if it is not warm enough, then the thermocline will be like the normal thermocline. All right. Here. And in fact, if the wind cycle gets broken, then warm water will move here and there everywhere. There will be no polarity. There will be no directionality. वार्म वाटर पूरा ही सरफेस वार्म हो जाएगा, या ऐसा कह लीजिए कि ये वाला इलाका भी गर्म हो जाएगा। अगर ये इलाका भी गर्म हो गया, इसकी बजाय ये इलाका गर्म हो गया ज्यादा, तो फिर जो यहां हो रहा था वही यहां होने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां क्या होने लगा था? यहां कन्वेक्शनल रेनफॉल होने लगेगी। क्लियर? अगर यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होने लगेगी, ये सब घटनाएं हो जाएंगी, तो यहां का ठंडा, जब ये भी गर्म हो गया,
तो ठंडे पानी की अपवेलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं? थर्मोक्लाइन मेंटेन हो जाएगा, थर्मोक्लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, थर्मोक्लाइन पूरा मेंटेन रहेगा। ऊपर वाले में देख लीजिए, ये देखिए यहां पे थर्मोक्लाइन को ब्रेक करके अपवेलिंग हो रही है और यहां पे नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली नहीं हो सकती है, क्योंकि पानी तो सारा इस तरफ, विंड इस तरफ पूरा, तो यहां कहां अपवेलिंग होगी? वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही थ्योरी में। इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर हो तो बताओ भाई। और अगर ऐसा है तो अपवेलिंग के न होने के कारण यहां पर जो प्लैंक्टोनिक ब्लूम हो सकती थी, जो फिशरीज बढ़ सकती थी, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी इनका दाहिने बाएं हो जाएगा। तो क्या जिसको कुछ ज्योग्राफी नहीं आती है, सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन वो नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर को अच्छे से समझता है, वो पेरू के ऊपर बनते हुए बादल और बरसात के आसार देखकर ये बता सकता है कि इस बार मछली पैदा नहीं होगी ठीक से, और वाइसे वर्षा इसका उल्टा भी वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं, कि क्योंकि इस बार जाल में मछली वछली कुछ हुआ नहीं है, तो इस बार समझो भयानक बारिश होगी, बाढ़ आएगी, इस बार हालत खराब हो जाएगा हम लोगों का। समझ गए बात? ऐसा 3 से 4 वर्ष में, ये टाइम इधर उधर हो सकता है, डोंट वरी, टाइम का कोई पीरियड, लेकिन ऐसा ये जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल होता रहता है, समय समय पे ये रिवर्सल होता रहता है। इसके क्या कारण है हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम की चीज ये है, जो हमने ओशियानिक करंट्स के रूप में पढ़ा वो ये है, ये आप समझ गए। ऐसा होता रहता है, ये नॉर्मल ईयर्स है, और जब ये हो जाता है तब कहा जाता है कि क्या हो गया, जब डिस्टर्ब हो जाती है साइकिल, तब क्या कहते हैं? एल नीनो। एल नीनो क्यों बोलते हैं इसको? एल नीनो का मतलब क्या होता है? चलो देख लेना, ये सब मेरा काम नहीं है बताना। बेबी क्राइस्ट सब तो ठीक है, तो इस ऐसा क्यों बोलता है ये लोग? एल नीनो क्यों बोलता है, बेबी क्राइस्ट क्यों बोलता है? जो भी बताओ कि काहे बोलता है, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक हो जाए। क्रिसमस के आसपास ये घटना होती है इसलिए, क्रिसमस के आसपास से होता है इसलिए ऐसा कहते हैं। अच्छा ओके ओके, तो आप लोग तो समझदार हैं। तो क्रिसमस कब आता है? कौन से महीने में आता है क्रिसमस? अच्छा दिसंबर में आता है, ओके। तो कौन से कोस्ट की हम लोग बात कर रहे थे? इस कोस्ट की बात कर रहे थे ना, कि क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस दिसंबर के महीने में जो है आता है, गर्म हो जाता है, एकदम भयानक गर्मी पड़ती है, फिर उसी के फलस्वरूप कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यही सब ना। आप समझे मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो? जो ये कोस्ट है, इस कोस्ट के लोग इसको इसलिए बेबी क्राइस्ट बोलते हैं, जो जो थ्योरी है वो ये है कि क्योंकि दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास ही ये घटना होती है, गर्मी भयानक पड़ेगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, ये होगा। तो दिसंबर में तो जाड़ा होता है जी, तो गर्मी कहां से पड़ेगी? जवाब दो जल्दी, और बस इसको खत्म किया जाए। चलो बस ठीक है, यू हैव गॉट योर आंसर। बाकी का आगे की क्लास में। गॉड ब्लेस एवरीवन, जय हिंद।